Ignited Minds Tutorials, a renowned online education platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of circles for Class 9 CBSE and other boards in mathematics. This series aims to provide students with a deep understanding of the concepts surrounding circles. The tutor begins by introducing the basic definition of a circle as a closed curve made up of points equidistant from a fixed point called the center. They explain the various elements of a circle, such as the radius, diameter, and circumference, and illustrate how to calculate them using formulas and the value of pi. Moving forward, the videos delve into the properties of circles, including tangents, chords, and secants. Students are taught different methods to find the length of a chord and the distance between the center and a point on the circle. The tutor also covers the angle subtended by an arc and the important concept of cyclic quadrilaterals. Throughout the series, the tutor presents numerous examples and problem-solving techniques to reinforce the learning. They emphasize the application of the circle's properties in real-life scenarios, enabling students to connect theory with practical situations. Ignited Minds Tutorials videos provide an engaging and interactive way for students to explore the intricacies of circles. Whether preparing for school exams or competitive assessments, this series equips learners with the necessary knowledge and problem-solving skills, enabling them to excel in the subject of mathematics. Students are encouraged to watch these videos to enhance their understanding and strengthen their grasp on the topic of circles. Okay, बच्चा buddy, we'll start today with circles in maths. और इस सर्कल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की, इसको ठीक से यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि ये एक इन कंटिन्यूएशन चैप्टर है, क्योंकि ये आपका 10th में भी रहेगा, दोनों भी बोर्ड्स में आपका 10th में भी ये टॉपिक रहेगा. सो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो को रिलेटेड हैं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम मेंसुरेशन या मेजरमेंट्स भी बोलते हैं, जो यहाँ पे भी रहेंगे और 10th में भी रहेंगे. ठीक है, 9th में आपका सर्कल्स रहेगा, 10th में भी रहेगा. So in case of any confusions that you have here, and in case you don't clarify those confusions or you don't work upon them, you are going to face the same problems when you go to the 10th standard. ठीक है, so थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, पूरा सा ही ध्यान दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका इन कंटिन्यूएशन चैप्टर है. दिस नॉट समथिंग दैट विल एंड इन 9th itself. It is going to get carried forward to 10th standard. ठीक है, so सर्कल्स होते क्या है, गोला गोला. ठीक है, so जो भी आपके ऐसे, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई साहब कैसे कोई आर्क क्या एंगल सबसेंड कर रहा है. ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं. ठीक है, तो दीज आर थिंग्स दैट वुड बी कवर्ड इन द टॉपिक. ओके, चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ. ठीक है, तो सर्कल्स भाई साहब क्या क्या है, बैंगल, फुटबॉल, कॉइन, ठीक है, बाउंड्री रोप ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड, ऑल दीज आर, इसको अपन स्फीयर बोलेंगे. हालांकि जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हम एक पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सर्कल का शेप लेगा, बट इन टोटलिटी इट्स एक्चुअली अ 3-dimensional फिगर. ठीक है, कॉइन्स हो गए आपके, बाउंड्री ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड, तो इसको अपन नहीं मान सकते सर्कल्स. ठीक है, हालांकि गोला गोला दिख रहा है लेकिन ये गोला गोला है नहीं. दिस इज लाइक दिस, अ सिलेंडर हो गया ये. दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर. ठीक है, ये भी आपका एक स्फीयर हो गया. दिस इज बेसिकली अ स्फीयर. तो ये एक परफेक्ट सर्कल हो रहा है, ये एक परफेक्ट सर्कल हो रहा है. ठीक है, दीज एग्जाम्पल्स आर रॉन्ग बिकॉज सर्कल जो है वो आपका 2-dimensional फिगर है और ये सब आपके 2-dimensional फिगर्स नहीं है. जैसे आपका फुटबॉल एक 3-dimensional फिगर है. ठीक है, आपके कॉइन्स जो है वो 3-dimensional फिगर्स हैं. ठीक है, सर्कल इज बेसिकली समथिंग विच इज 2-dimensional ओनली. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. फॉर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अ सर्कल विद अ सेंटर O है. लेट अस डिफाइन सर्कल. सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन. ठीक है, कैन बी एनी सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉन. तो सर्कल भाई साहब है क्या? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन. तो सर्कल इज बेसिकली अ सेट ऑफ पॉइंट्स in a given plane. ठीक है, तो set of points are all these points of circle. तो आपके भाई साहब नहीं होंगे. ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं each of these points satisfy a condition. क्या कंडीशन हो सकती है बता सकते हैं? समझ लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. क्या है इन पॉइंट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ओके, सो O से आपका तीनों का डिस्टेंस सेम रहेगा और ये डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस. ठीक है, तो सर्कल इज बेसिकली व्हाट? लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. समझ में आ रहा है? सर्कल इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट. तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन. ईच ऑफ दीज पॉइंट्स सेटिस्फाई अ कंडीशन. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो ये कंडीशन क्या है भाई साहब आपकी? कंडीशन ये है
कि अगर आप इसको मेजर करें तो यू आर गोइंग टू ऑलवेज गेट द सेम वैल्यू। तो अगर भाई साहब आपने ओ ए को मेजर किया और लेट से आया आपका 4 सेंटीमीटर, तो किसी और पॉइंट को भी सर्कल में मेजर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ये सर्कल का डेफिनेशन, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे अगर आप उठाकर मेजर करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। लेट से पॉइंट बी को आपने मेजर किया, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट सी को आपने मेजर किया, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी भाई साहब 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी भाई साहब 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई। ऐसे तमाम जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका रेडियस सेम आ जाएगा, विच इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली अ सर्कल। ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, ये सारे के सारे। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। विच आर द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं रेडियस। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। व्हाट इज ओ ए? रेडियस, ठीक है। व्हाट, ये आपका भाई साहब इनफाइनाइट। रिमेंबर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो आपके जितने भी रेडियाई होते हैं सेम सर्कल के वो इक्वल होते हैं भाई साहब, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल सी और डी। तो आपका भाई साहब ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये एक सेगमेंट हो गया। सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो वो क्या देगा आपको? कॉर्ड। इट विल बेसिकली गिव यू अ कॉर्ड। सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ये हो गया आपका रेडियस एंड सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया आपका कॉर्ड। अ सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो कोई भी दो पॉइंट्स हैं सर्कल के अंदर और अगर सर्कल के ऊपर है वो, ऐसा नहीं कि भाई साहब यहां पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कॉर्ड हो जाएगा, नहीं, ठीक है। सर्कल के अंदर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो नहीं, सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन होगा उसको अपन बोलेंगे कॉर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अ लाइन विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। तो ये आपके कितने कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो इनफाइनाइट कॉर्ड्स, बट दिस इज अ स्पेशल कॉर्ड बिकॉज अभी एक स्पेशल कॉर्ड कौन सा होगा? जो आपका सेंटर से पास करे, और इस कॉर्ड को अपन क्या बोलेंगे? डायमीटर। दिस कॉर्ड इज नोन एज द डायमीटर। क्लियर है भाई साहब? ओके, सो अ कॉर्ड विच पासेस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज द डायमीटर, ठीक है। सच अ कॉर्ड इज नोन एज अ कॉर्ड पासिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो आपके इनफाइनाइट डायमीटर्स होंगे, ठीक है। देखो आपका साइकिल आपने देखा रहेगा, राइट? साइकिल के स्पोक्स दिखते हैं आपको, तो स्पोक्स अगर डायमीट्रिकली हो जाए तो कितने ऐसे डायमीटर्स लगा सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर्स लगा सकते हैं आप। सो इनफाइनाइट कॉर्ड्स भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियसेस भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिनकी कोई गिनती ना हो, ठीक है। देयर कुड बी इनफाइनाइट रेडियसेस विदिन रेडियाई विदिन द सर्कल, देयर कुड बी इनफाइनाइट डायमीटर्स विदिन द सर्कल, देयर कुड बी इनफाइनाइट कॉर्ड्स विदिन द सर्कल। क्या ये समझ में आ रहा है? Chord is what? Line joining any two points on the circle. Diameter is what? The largest chord of the circle. और chord is आपका भाई साहब what is basically radii? The line joining any point on the circle to the center. ठीक है? Clear है? Okay. Equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. ये आपका पहला थियरम है, इसको भाई साहब लिख लीजिए, ठीक है। Equal chords subtend equal angles at the center. इसका दूसरा वर्जन क्या है? इक्वल आर्क्स, ठीक है। इक्वल आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबसेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो पहले तो आपको यहां पे कुछ चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। कॉर्ड्स आपने समझ लिया, कॉर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉर्ड्स? किसी भी दो पॉइंट को ऑन अ सर्कल अगर हम ज्वाइन करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज अ कॉर्ड, ठीक है, ओके। सबसेंड इक्वल एंगल्स, अभी देखो इक्वल एंगल्स, अभी पहले समझते हैं कि कॉर्ड का एंगल क्या होता है। देखो ये सर्कल है, कोई ये कोई सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये लेट से कोई कॉर्ड हो गया, देख लो पहले इसको देख लो, इसको देख लो, देख लो। ए बी है आपका कॉर्ड, ठीक है। यहां पे सेंटर पे जो एंगल सबसेंड कर रहा है ये कॉर्ड है, एंड दिस इज बेसिकली सबसेंडिंग एन एंगल एट द सेंटर। इसको अपन बोलते हैं सबसेंड करना, ऐसे, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये एक एंगल सबसेंड कर रहा है सेंटर पे, ये कॉर्ड है, ये एक एंगल सबसेंड कर रहा है सेंटर पे। तो कहीं कहीं पे हम आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब क्या होता है? ये देखो, जैसे ये आपका एक आर्क है, ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये आर्क है, तो ए वाई बी, तो ये ए वाई बी, तो हम कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी। ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी। क्या ये समझ में आ रहा है? मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी, आर्क ए वाई बी का मेजरमेंट क्या होगा? जो वो एंगल सबसेंड कर रहा है यहां पे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है।
या हम बोल सकते हैं भाई साहब द कॉर्ड ए बी substance and angle AOB at the center. ठीक है, substance and angle AOB at the center. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो यहां पे क्या दिया हुआ है? अच्छा, दूसरी बात तो ये समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया आपको। इक्वल कॉर्ड्स क्या होता है हम देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या हो जाएंगे, और ये आपको ये वाला देखो, जो चीजें समझनी है पहले, कॉर्ड्स मतलब समझ में आ गया, सबस्टेंड करना मतलब समझ में आ गया, जो सेंटर पे आप एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो गया सबस्टेंड करना। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम सुना है आपने, जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। दो ट्रायंगल्स में अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। जैसे समझो मैंने आपका एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ किया ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ किया DEF, ठीक है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। क्लियर है? अगर मैंने इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? क्या छिप जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इसके 3 एंगल्स और इसके 3 साइड्स, इसके 3 एंगल्स और इसके 3 साइड्स के बराबर है। मतलब क्या हो गया कि इस ट्रायंगल को उठाकर अगर मैंने इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया तो ये नहीं दिखेगा, है ना, फिर आपको DEF ही दिखेगा, ABC नहीं दिखेगा। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी होते हैं। तो समझ लीजिए कोई सर्कल आपने ड्रॉ किया, इसका रेडियस आपने लिया 5 सेंटीमीटर, कोई दूसरा सर्कल आपने ड्रॉ किया, इसका रेडियस आपने लिया 5 सेंटीमीटर, इसको उठाकर इसके ऊपर डाल दिया तो ये नहीं दिखेगा। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या हो जाएंगे? सर्कल्स विद द सेम रेडियस। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम रेडियस, ठीक है। तो यहां पे आपको इंटरप्रेट करना है इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब समझ में आ गया, इक्वल कॉर्ड्स। तो मतलब समझो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आर दीज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? यस दे आर। इक्वल कॉर्ड्स ले लिया मैंने, यहां पे एक कॉर्ड और यहां पे एक कॉर्ड, मतलब ये AB जो कॉर्ड है और ये जो CD जो कॉर्ड है, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इक्वल कॉर्ड्स हो गया ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या यह मामला समझ में आ रहा है? सो दीज आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मींस व्हाट? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मींस व्हाट? देयर रेडियसेस आर द सेम, ठीक है, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अभी भाई साहब ये जो एंगल है और भाई साहब ये जो एंगल है ये सेम है, ये आपको भाई साहब प्रूव करना है, ठीक है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, लेट्स से ये O है और ये O डैश है, ठीक है। अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, मतलब इनके रेडियसेस सेम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश C इज इक्वल टू O डैश D। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कैन वी? बिकॉज बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या ये लिख सकते हैं भाई साहब? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इनके रेडियाई बराबर हैं। तो OA और OB क्या हो गया? रेडियाई ऑफ द फर्स्ट सर्कल। O डैश C और O डैश D क्या हो गया? रेडियाई ऑफ द सेकंड सर्कल। सिंस द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द रेडियाईज विल बी इक्वल। क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ओके, तो अभी हम आते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड O डैश CD, ठीक है, OAB और O डैश CD। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो ये तो आपको दिया ही हुआ है कि AB इज इक्वल टू CD, ये तो आपका गिवन कंडीशन है भाई साहब। क्यों गिवन कंडीशन है? इक्वल कॉर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका? OA किसके बराबर? O डैश C के बराबर। OB किसके बराबर? O डैश D के बराबर, है ना। ये तो भाई साहब हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में रेडियसेस सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए भाई साहब। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। तो ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O डैश CD बाय SSS, है ना। साइड से ये भाई साहब कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D। रीजन भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाले दो एंगल्स
सो इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, यही आपका थियरम है भाई साहब। ठीक है, दिस इज बेसिकली द थियरम। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब क्या हो जाएंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम रेडियस, their centers might not be the same but their radiuses are the same। ठीक है, सो O और P के भाई साहब दो सर्कल्स हो गए, इक्वल कॉर्ड्स ले लो भाई साहब, इक्वल कॉर्ड्स, लेट्स से आपने AB एक कॉर्ड ले लिया और लेट्स से आपने CD एक कॉर्ड ले लिया, देयर आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, नाउ व्हेन, तो यहां पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड P रिस्पेक्टिवली। सेंटर आपके क्या है भाई साहब, O और P है रिस्पेक्टिवली। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो सबसेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, टू प्रूव आपका भाई साहब यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। तो प्रूफ आपका क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD आपका क्या क्या बराबर भाई साहब, AO इज इक्वल टू CP, AO इज इक्वल टू CP। ठीक है, BO इज इक्वल टू DP, BO DP के बराबर हो गया और आपका AB CD के बराबर हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, AO CP AB C, देखो ये तो आपके रेडियाई है ना, सब बराबर है, सारे रेडियाई बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो आपके भाई साहब यहां पे क्या कंडीशन स्टैब्लिश होती है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल CPD, और ये रीजन क्या हो जाएगा, SSS। तो SS के चलते तो आपका एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सस्पेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। If chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal। तो अभी उल्टा कि आपके पास आप congruent circles हैं, ठीक है, chords of congruent circles, ये दो chord हैं congruent circle के, subtend equal angles at their center, then the chords are equal। इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट फटाफट। कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो आपने भाई साहब यहां पे मान लिया कि ये एक सर्कल है एंड लेट्स से ओके, सो ये आपका भाई साहब थ्योरम है जिसको आपको प्रूव करना है। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो आपका लेट्स से एक सर्कल हमने ले लिया, लेट्स से दिस इज बेसिकली वन सर्कल एंड दिस इज द, वो भी बनाना भाई साहब,
तो ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। और दोनों का भाई साहब क्या है, लेट्स से इट हैज गॉट अ सेंटर O एंड दिस हैज गॉट अ सेंटर P। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, मतलब इनके रेडियस सेम है, ठीक है। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो आपका कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है, तो हम यहां पे गिवन ले लेंगे, गिवन सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बेसिकली, ठीक है, विथ सेंटर्स, O एंड P, ठीक है, सबसेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो आपका समझ लो भाई साहब यहां पे कोई कॉर्ड है, लेट्स से आपका कॉर्ड है आपका AB, और इधर आपका कॉर्ड है लेट्स से CD, ठीक है। सो ये कॉर्ड हो गया आपका AB और ये कॉर्ड हो गया आपका CD। अभी लेट्स से आपका AB ये एंगल सबसेंड कर रहा है और CD भाई साहब आपका ये वाला एंगल सबसेंड कर रहा है, ठीक है। CD सबसेंडिंग दिस एंगल, ठीक है, क्लियर है। आपको दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। सो ऑल्सो गिवन कॉर्ड A, और रादर हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है भाई साहब, टू प्रूव दिस, टू प्रूव विल बी व्हाट, टू प्रूव भाई साहब आपका एंगल AOB, सॉरी आपका AB एंड CD आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूव करना है, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो प्रूफ में आप क्या देखेंगे भाई साहब, प्रूफ में इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, AOB एंड COD, AOB और COD में क्या हो जाएगा बोलो, AO इज इक्वल टू CP एंड BO इज इक्वल टू DP, BO इज इक्वल टू DP। रीजन क्या लिखेंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई, है ना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई भाई साहब। और क्या है दिया हुआ है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये दिया हुआ है आपको गिवन, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका SAS, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रीजन। अगर ये रीजन होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, दैट इज AB विल बी इक्वल टू CD। रीजन आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली विल प्रूव दिस वन। तो ये हो गया O और P भाई साहब, ABCD, तो सबसेंड कर रहे हैं भाई साहब गिवन एंगल AOB, और ये हो गया CPD टू प्रूव। तो आपका भाई साहब ACPD, तो आपका AB इज इक्वल टू CD। ओके, 13 में आपका द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए फटाक से, जल्दी से प्रूव करना है भाई साहब। देखो जब भी आपको कोई थ्योरम प्रूव करने दिया जाए ना, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन, क्योंकि यहां पे आपको कुछ दिया नहीं हुआ है, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। तुम लोग में से कौन बोला, कोई नहीं ना। कौन सस्पेंड हो गया, तो वही कर, कौन सस्पेंड हो रहा है कौन।
नंदिता, श्रेया और तन्मय, और कौन? डन डन डन, जल्दी करना है भाई साहब। ओके, सो यहां पे भाई साहब आपने एक सर्कल ले लिया, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल का एक सेंटर ले लिया, लेट्स से दिस इज O, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो हमने एक कॉर्ड लिया हुआ यहां पे, लेट्स से दिस इज बेसिकली टेकन एज अ कॉर्ड, ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। लेट्स से ए बी इज बेसिकली अ कॉर्ड, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव ड्रॉन इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड टू अ सर्कल, सो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, सो लेट्स से ये हो गया ओ एक्स, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O एंड कॉर्ड ए बी, सर्कल विथ सेंटर O एंड कॉर्ड ए बी, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका ओ एक्स, क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अभी आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव यू हैव टू बेसिकली प्रूव दैट ए एक्स, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो चलिए भाई साहब प्रूफ में आते हैं, ठीक है। प्रूफ में बिफोर वी कम टू प्रूफ वी माइट हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन हियर, ठीक है, बिफोर वी कम टू प्रूफ वी माइट हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन हियर, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ओ ए और भाई साहब ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो यहां पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी आते हैं हम भाई साहब प्रूफ पे, ठीक है। सो प्रूफ में आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ में क्या लेंगे हम भाई साहब, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स, इन ट्राइंगल्स ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स, ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन आपका क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए और ओ बी बराबर आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, देखो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर, गिवन है ना भाई साहब, ठीक है। आपका ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन, ये तो भाई साहब आपका बाई कंस्ट्रक्शन है ही, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ओ एक्स आपका कॉमन साइड, ओके, चलिए ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स वाई कॉमन साइड, ठीक है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स वाई बिकॉज ऑफ बीइंग अ कॉमन साइड। तो अब बताओ भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट किस हिसाब से बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एक्स, रीजन आपका क्या हो जाएगा, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और अगर ऐसा होता है सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, मतलब ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। यहां पे लिख देंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। सो अच्छा, ऐसे प्रूफ में हमेशा आप इसको ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, देयरफॉर हम यहां पे आंसर लिखेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects the chord. This would be the answer. Therefore, it proves that the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? तो ये आपका एक सर्कल हो गया, ये कॉर्ड हो गया, इन अ सर्कल तो परपेंडिकुलर हो गया, मींस द कॉर्ड। तो आपका भाई साहब ए ई इज इक्वल टू ई बी। सो डू वी हैव ट्राइंगल्स, तो हम यहाँ पे नो, सो वी विल हैव टू क्रिएट, हमको ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग पी ए एंड पी बी। तो हमने ट्राइंगल क्रिएट किया है, यहाँ पे पी ए और पी बी से ट्राइंगल को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो ड्रॉ ट्राइंगल्स नाउ। अभी प्रूफ में भाई साहब ये दोनों आपके रेडियस बराबर, इन ट्राइंगल्स पी ए एंड पी बी, एंगल पीई ए इज इक्वल टू एंगल पीई बी, दैट इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। और क्या है भाई साहब आपका, पी ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पी बी, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, बीइंग रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
and P is equal to P, which is basically common side. So by the theorem of RHS, these two triangles are congruent. आपको नींद आ रही है? These two triangles are congruent. अगर आपके ये congruent हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका AE is equal to EB. AE और EB बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं CPCT से. So therefore, okay, चलिए ये वाला सवाल है भाई साहब, करना है फटाफट फटाफट. तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्योरम क्या हो गया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट. ओके ठीक, चलिए चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी. The radius of a circle with center P is 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यहां पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर. तो अपन यहां पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड को अगर लेते हैं, ये वाला है देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये कितना दिया हुआ है आपको, दिस हैज बीन गिवन एज 48 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर P इज 25. तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये रेडियस हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, this will basically become the radius. ये आपका रेडियस हो जाएगा, that will be how much 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब. अभी आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे पीएम की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस कभी भी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएम. हमको यहाँ पे भाई साहब पीएम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो इन ट्राइंगल APM, AP की वैल्यू भाई साहब कितनी है, AP की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल है भाई साहब, ठीक है. ओके, अभी आपका PM जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है. PM जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है. तो आपका भाई साहब AM का वैल्यू कितना हो जाएगा, AM का वैल्यू हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ AB, ठीक है, हाफ ऑफ 48 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 सेंटीमीटर. इसका आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, क्यों ये 24 सेंटीमीटर होगा. अभी अभी आपने पढ़ा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. ये रीजन आपको देना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 24 सेंटीमीटर. नाउ हम यहां पे, क्योंकि सिंस ट्राइंगल APM इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, which is what, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर. AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. AP का स्क्वायर हो गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर. AM का स्क्वायर मतलब हो गया आपका कितना 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस, प्लस PM का स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 576, ठीक है. तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर. इसको अगर मैं इधर ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर. सो PM का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो देयरफॉर PM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 7 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. अगर इस चीज को आप यहां पे ऐसे ना करना चाहें तो दूसरा एक तरीका है, यहां से मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है. यहां तक तो सेम ही आएगा,
यहां से आप दूसरे तरीके पे ले जा सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये है, अगर मैं समझ लो उसको स्क्वायर नहीं करना चाहता हूं तो भी हो सकता है। देखो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर। अभी ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, 25 प्लस 24। अगर आपको नहीं करना है वैसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर। कर लो भाई साहब, 25 माइनस 24 कितना होगा 1, और 25 प्लस 24 कितना होगा 49। 1 इंटू 49 कितना आ जाएगा 49, वही सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, पीएम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी 49, ये आंसर आ जाएगा सेम, ठीक है। सो इफ यू डोंट वांट टू एक्सपैंड 25 एंड 24 यू कैन डू दिस। सो देयरफॉर हमको यहाँ पे भाई साहब क्या निकला है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द chord, distance of the chord from the center of the circle, distance of the chord from the center of the circle is 7 centimeter. Making sense people? Are we making sense here? Okay. अरे यार, ठीक है, ये 25 हो गया, ये 48 हो गया, तो आपका पीएम जो है तो परपेंडिकुलर है, तो पीएम इस पर क्या बोल रहा था, ये हाफ ऑफ ए बी परपेंडिकुलर। तो जिस तरह से देखो आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 24, कंसीडर एंगल पीएम ए, तो ये 90 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अपन भाई साहब, तो ये हो गया आपका 49, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर पी इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाक से, क्विकेस्ट, जल्दी। डन। ए पी की वैल्यू यहां पे कितनी है 34। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली ए पी, इसका वैल्यू कितना है भाई साहब 34, दिस वैल्यू इज 34, ठीक है। ये यहां से आवाज आ रहा है बाबा, गाड़ी भाई साहब टायर और खुल के गिर जाएगा। ओके, ए पी इज इक्वल टू 34, ए एम की वैल्यू कितनी है भाई साहब 30, ठीक है। सो ए एम की वैल्यू है भाई साहब 30, ए एम की वैल्यू है 30। ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो आपको यहाँ पे पी क्यू का लेंथ निकालना है, ठीक है। सो भाई साहब क्या करेंगे, पहले तो आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हैं, पीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पीएम की वैल्यू नहीं चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, क्या कर रहा है तू, देखो घड़ी का टाइम सेट कर रहा है, इधर की सेटिंग खराब पड़ी है तुम्हारी, उधर सेट कर रहे हो टाइम। यहां पे 34 और 30, और यहां पे भाई साहब पीएम की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपका पीक्यू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पीएम, बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, तो जो भी पीएम की वैल्यू होगी उसकी डबल वैल्यू हो जाएगी पीक्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। ओके, सो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए पी एम, इन ट्राइंगल ए पी एम, क्या हो गया चाची, क्या हो गया, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका किसके लिए है भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब। तो ए पी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया 34 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया ए एम का स्क्वायर, दैट इज 30 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया भाई साहब आपका पी एम का स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर वही चीज करनी है अगर आप तो कर सकते हैं भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि आपको 34 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। खैर यहां पे आपका हो गया 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। कर लिया भैया भाई साहब आप यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 34 माइनस 30 इंटू 34 प्लस 30, ठीक है, इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। 34 माइनस 30 कितना हो गया भाई साहब आपका 4, और ये हो गया आपका 64। ठीक है, ये हो गया आपका 64 इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। तो पी एम कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ दिस मतलब 4 का अंडर रूट हो गया 2 और 64 का अंडर रूट होता है 8, दैट विल बी इक्वल टू पी एम। सो देयरफॉर पी एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16। पी एम की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, पी एम की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, यूनिट्स तो नहीं दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पी एम। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32। साथ ही साथ भाई साहब आपको थियरम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके सो यहां पे देखो 34 और 30 तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भाई साहब आप। ठीक है, 34 तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरा एक्सपैंड किया और इसको पूरा एक्सपैंड किया। ठीक है, लेकिन इसमें आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, 256 तो ये आपका 16 आ गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल द लेंथ ऑफ पी क्यू इज हाउ मच, 32 यूनिट्स। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। ओ बाप रे, सारा फ्यूल इधर ही जा रहा है। हैंग हो गया, हैंग हो गया। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो आपका भाई साहब इस कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, दिस कॉर्ड इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, this cord is having a length of 30 centimeter, is drawn at a distance of 8 centimeter from the center of the circle, find the radius of the circle। तो आपको यहाँ पे radius of the circle को निकालना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो पहला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए, 30 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, ए एम की वैल्यू कितनी होगी, कैसे
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। तो ए एम की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहां पे हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी मतलब 30 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका भाई साहब वैल्यू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो गई आपकी भाई साहब 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो बताइए भाई साहब, अरे बताइए ना, ओ ए, तो आपका यहाँ पे जो ट्राइंगल है देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम, तो आपका ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। भाई साहब कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब ये इक्वल है, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 64 प्लस 225, तो ये हो गया आपका कितना, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर हो गया इतना, सो देयरफॉर ओ ए की वैल्यू हो गई 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 17 सेंटीमीटर, यही आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। मेकिंग सेंस पीपल, हम क्लियर है? ओके ओके ओके। तो यहां पे हो गया 15 सेंटीमीटर इसका, तो आपके पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब आ गया ये 289, तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके ओके ओके। The segment joining midpoint of a chord and the center of a circle is perpendicular to the chord. ये आपको प्रूव करना है, ट्राई कीजिए भाई साहब इसको फटाफट फटाफट, ये थ्योरम है बेसिकली। देखो इसके पहले आपने क्या प्रूव किया है कि लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। अभी इसका उल्टा प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर है वही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो यहां पे आपका द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो अगर आपने भाई साहब यहां पे एक, इफ लेट्स से यू हैव कंसीडर अ सर्कल, इफ लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सर्कल, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। सो हमारा यहां पे भाई साहब एक कॉर्ड है, सो ये आपका कॉर्ड है, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। ये हो गया लेट्स से ए बी, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, ये आपका मिड पॉइंट है कॉर्ड का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, आपको यहां पे ये प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी, ठीक है। टू प्रूफ, यहां पे भाई साहब आपका टू प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ लेट्स से ये आपका ओ एक्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक कंडीशन क्या दी हुई है आपको, ये आपका गिवन है कंडीशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली गिवन कंडीशन, गिवन है आपका सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी, और क्या दिया हुआ है, ओ एक्स बाइसेक्स ए बी, ठीक है। ओ एक्स बाइसेक्स ए बी, यही दिया हुआ ना, देखो सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, ये मिड पॉइंट है, एक्स जो है मिड पॉइंट है ऑफ अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक्स इज बेसिकली द मिड पॉइंट, या अपन यहाँ पे बाइसेक्ट ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ए बी, और इसको हमने सर्कल से ज्वाइन कर दिया, सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अभी आपको यहाँ पे टू प्रूफ में क्या लिखेंगे लक्ष्मी, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे क्या लिखना है टू प्रूफ में, आप ट्राई कीजिए।
इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, तो कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी बताइए इसको। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वी विल बेसिकली ज्वाइन दीज टू, ठीक है। तो अगेन कंस्ट्रक्शन में भाई साहब, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। सो आपका यहां पे भाई साहब प्रूफ इन ट्राइंगल्स कौन सा भाई साहब, ओ एक्स ए एंड ओ एक्स बी, इन ट्राइंगल्स ओ एक्स ए एंड ओ एक्स बी क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ठीक है। आपका यहां पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, है कि नहीं, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, वाई, क्योंकि आपने लिया हुआ है भाई साहब एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। गिवन एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं। और बोलो भाई साहब ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, दैट इज कॉमन साइड, तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका कॉमन साइड। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ओ एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एक्स बी, ट्राइंगल ओ एक्स ए और ओ एक्स बी आपका क्या हो गया भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या हो जाएगा, एस एस एस, रीजन हो गया आपका एस एस एस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो एंगल ओ एक्स ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। आर बी क्लियर? अभी हमको मालूम है कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है कि नहीं, दीज आर लीनियर पेयर। हमको यहां पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इक्वल नहीं प्रूव करना है, ठीक है। सो एंगल ओ एक्स ए प्लस एंगल ओ एक्स बी इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या है, दे आर बेसिकली अ लीनियर पेयर। अगर ऐसा है तो इस ओ एक्स बी की जगह पे अपन ओ एक्स ए लिख सकते हैं, तो यहां पे हो गया आपका ओ एक्स ए प्लस एंगल ओ एक्स ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अगर ऐसा होता है भाई साहब तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी बेसिकली ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल ओ एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज। एंगल ओ एक्स ए की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज, और यही भाई साहब किसके बराबर हो जाएगी, ओ एक्स बी की, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सो इसका मतलब अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से आप सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बेबी शावर करो भाई साहब तुम, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट से किसी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो भाई साहब आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर। सो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल पीएमसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पीएम इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू सीडी, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी।
कर रहे हो वैसे भी। Okay, in a circle with center P, chord AB is smaller than the sum of the sides P and PB. PA and PB से smaller है by 4 सेंटीमीटर. chord AB, ठीक है. तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, chord AB is smaller. chord AB is smaller than the sum of the sides P and PB by 4 सेंटीमीटर. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए स्मॉलर मतलब -4 ना, तो PA प्लस PB -4 ऐसा लिख सकते हैं, या AB + 4 = PA + PB ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAB इज, तो आपका PA + PB + AB दिस इज इक्वल टू 144. देन फाइंड द लेंथ ऑफ PM. तो आपको यहां पे फाइंड द लेंथ ऑफ PM करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, तो अभी देखो ये वाला एक AB + P, अभी देखो PA इज इक्वल टू PB होगा, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए बी इज इक्वल टू PA + PA कितना हो जाएगा, 2PA - 4, ठीक है. तो AB, और रादर हम यहां पे ये लिख सकते हैं, इसको अगर हमने इधर ले लिया तो दिस विल बी 2PA - AB, इसको इधर लिया तो इसको इधर लिया 4. तो देयरफॉर आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, 2PA - AB इज इक्वल टू 4. दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. समझ में आता है भाई साहब, ये हो गया आपका. सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व कर देंगे. ओके, अभी आपका दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो, PA + PB + AB इज इक्वल टू 144. तो यहां पे ये PA और PB बराबर है, PA और PB बराबर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2PA + AB इज इक्वल टू 144. ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2. ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2. तो यहां पे हो गया आपका 2PA + AB, 2PA + AB इज इक्वल टू 144. और यहां पे हो गया आपका 2PA - AB इज इक्वल टू 4. इसको अगर अपन ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया. 4PA इज इक्वल टू 148. सो देयरफॉर PA की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 148/4. 4 3 = 12, 4 7 = 28. तो PA की वैल्यू कितनी आ गई है, 37, ठीक है. 37 आ गया भाई साहब आपका PA का वैल्यू. तो भाई साहब अभी अपन यहाँ पे PB की वैल्यू निकालो, AB की वैल्यू निकालो, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 2 × PA दैट इज 2 × 37 - AB इज इक्वल टू 4. सब्स्टिट्यूटिंग फॉर PA इन इक्वेशन 1, ठीक है. तो ये हो गया आपका कितना, 74 - AB इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया 74 - 4 इज इक्वल टू AB. सो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 70. AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 70, ठीक है. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ PM. आपको यहाँ पे PM की वैल्यू निकालनी है. ओके, AB की लेंथ आ गई भाई साहब 70. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे हमने PA की वैल्यू निकाली. PA की वैल्यू इज हाउ मच, सो दिस PA की वैल्यू, ये PA की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, दिस PA की वैल्यू है 37, ठीक है. अच्छा, AB की वैल्यू इतनी आई है, तो AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AM विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB.
अगेन हम भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्स इट। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए एम की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ ए बी आपका 70 है, तो इंटू 70 तो ये हो गया आपका 35, तो ए एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 35, ए एम की वैल्यू हो गई 35। ठीक है, सो हियर वी हैव ये ए एम की वैल्यू हो गई एंड दैट इज हाउ मच 35। ठीक है, क्लियर है। अभी इन ट्राइंगल, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल ए पी एम इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो देयरफॉर ए पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए एम का स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर कितना हो गया 37 का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहां पे भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही करो, 37 का स्क्वायर करके फिर 35 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे अगर अपन करते हैं तो दिस विल बी 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 37 माइनस 35, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे 37 माइनस 35 कितना हो गया 2, और 37 प्लस 35 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 हो गया आपका 12, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, तो 72 इंटू 2 कितना होता है 144 इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, तो आपका बेसिकली पी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब अंडर रूट ऑफ 144। ठीक है, सो पी एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर, पी एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो यहां पे आपसे पूछा है तो ए बी की वैल्यू भाई साहब देखो यहां पे क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस 4 है। ठीक है, और पी और पी बी बराबर है भाई साहब, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इसको x मान लिया, मैंने तो पी ए माना था, आप x मान लो, यहां पे x प्लस एक्स माइनस 4, x प्लस एक्स माइनस 4, तो 2x माइनस 4 हो गया। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 144 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब x प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 144, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। पी ए प्लस पी बी मतलब x प्लस एक्स, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपने पहले वाले इक्वेशन से क्या ही निकाल रखा है। ठीक है, यू हैव बेसिकली फाउंड इट टू बी 2x माइनस 4, तो x प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 144, दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो आंसर वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37, तो पी ए और पी बी आपका हो गया 37, तो आपका ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 दैट इज 2 इंटू 37 माइनस 4 दैट इज 74 माइनस 70 दैट इज ए बी की वैल्यू हो गई 70, तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/2 दैट इज 35। ठीक है, वाई बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपको थ्योरम में डालना पड़ेगा। ठीक है, so PM is perpendicular to half of AB, the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, तो half into 70 तो ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल PMA एंगल PMA की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर ठीक है माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, इसको भाई साहब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर लो। ठीक है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्योंकि जितना आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करोगे उतना ही आपके गलत होने के चांसेस होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 72 इंटू 2 विच इज 144। ठीक है, तो पीएम का वैल्यू हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? ओके, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, तो अगर आप देखते हो कि किसी
देखो अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। तो अगर किसी ट्राइंगल में साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर आता है, थर्ड साइड के बराबर आता है, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, इट विल बी बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कन्वर्स है बेसिकली। तो ये आपका देखो अगर हमारा सम ऑफ वन साइड, जो लार्जेस्ट साइड है ऑब्वियसली हमको दिख रहा है यहाँ पे AC है, अगर हमारा AC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देन ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका क्या है भाई साहब, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स मतलब क्या होता है, इफ एंड देन की कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसमें भाई साहब ये AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। तो ये इफ कंडीशन है और ये देन कंडीशन है किसकी भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम की। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इफ वाली कंडीशन इधर आ जाएगी और देन वाली कंडीशन इधर चली जाएगी। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स, तो हम यहां पे बोल सकते हैं देन इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो दैट इज बेसिकली कन्वर्स ऑफ। ये क्या हो गया वैसे, रॉन्ग सोल्यूशन क्या है? ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. जो कॉमन chord होगा उसका लेंथ कितना होगा, जल्दी 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 फटाफट। तो यहां पे दो सर्कल्स है, देखो यहां पे आपके दो सर्कल्स है, वन इज one is of radius 5 centimeter, the other one is of radius 3 centimeter. ठीक है, सो एक का रेडियस भाई साहब 5 सेंटीमीटर और लेट्स से दूसरे का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपके टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी आपके दो पॉइंट्स है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली O एंड दिस इज O डैश। ठीक है, तो पहला वाला सर्कल है आपके 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये आपके 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स 5 and 3 and the distance between their centers is 4 centimeter. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, this distance is how much, 4 centimeter. So this happens to be the distance between the two circles. तो इनके बीच में डिस्टेंस है कितने का भाई साहब, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अभी आपने भाई साहब यहाँ पे कॉमन कॉर्ड कौन सा लेना है, ये AB, ये AB हो जाएगा बेसिकली आपका कॉमन कॉर्ड। तो AB का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलिए इसको जरा कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। जल्दी जल्दी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दिया तो है, पढ़ो ना उसको। O और O डैश का लेंथ है।
हो गया भाई साहब, टाइम की सेटिंग हो गई तुम्हारी? हाँ, देखो इसको बहुत, यहां पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो लेट्स से इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इसको भी, ठीक है, और इसको ज्वाइन किया और इसको, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में भाई साहब ज्वाइन ओ ए, ओ डैश ए, ओ बी एंड ओ डैश बी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? ओ ए, ओ डैश एंड ओ बी, ओ डैश, ठीक है। यहां पे क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, है कि नहीं? ये ओ, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ओ ए और ओ बी बराबर होगा। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये और ये बराबर, इसी तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? अगेन सेम, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, वाई? अगेन द सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दिस इज ऑल्सो द सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों हो गए और बीच में आपका कॉमन साइड ओ, ओ डैश इज इक्वल टू ओ, ओ डैश, तो दिस इज बेसिकली कॉमन साइड, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, रीजन हो जाएगा आपका एस एस एस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो हमने पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो क्या अपन बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे? विल दीज टू एंगल्स बी कॉन्ग्रुएंट? इसी तरह से भाई साहब ये दोनों एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, वी कैन से दिस, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल कौन सा? ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या अपन लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स पे, तो लेट्स से आपका एक्स, हम यहां पे मान लेते हैं लेट, तो ये आपका एक्स है बेसिकली, जहां पे सेंटर्स का जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट एक्स बी द पॉइंट वेयर द लाइन joining the centers intersects the common chord, intersects the common chord, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल्स कौन सा? देखो ओ ए एक्स, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ओ, इन ट्राइंगल्स ओ ए, क्योंकि ये भाई साहब दूसरा प्रूफ है तो लेट्स डीमार्केट हियर। इन ट्राइंगल्स कौन सा भाई साहब? ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स, ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स। बोलिए भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसका प्रूफ तो आपको देना नहीं है भाई साहब, अभी तो पहले ही आप प्रूफ दे चुके हैं इसका, सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द रीजन वंस अगेन, ठीक है। नाउ एंगल क्या भाई साहब? ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स। क्यों भाई साहब? आप यहां पे प्रूव कर चुके हैं एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, ठीक है, ये है आपका भाई साहब। क्योंकि ये दोनों एंगल देखो ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश बराबर था, तो एंगल ए ओ एक्स और एंगल बी ओ एक्स आपका बराबर है, ठीक है। ओके, और क्या भाई साहब? ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, दिस इज बेसिकली कॉमन साइड, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर और ये दोनों एंगल्स बराबर, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? रीजन क्या हो जाएगा आपका? एस ए एस, इस रीजन से भाई साहब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहां पे आते हैं, देखो ओ एक्स ए और ओ एक्स बी, सो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी। अगेन रीजन क्या हो जाएगा?
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये रीजन हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, ये दोनों मिलाकर क्या है आपके 180 है, ठीक है। सो अपन यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब एंगल ओ एक्स ए प्लस एंगल, ये दोनों क्या है आपके 180 होंगे ना, ओ एक्स ए प्लस एंगल ओ एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई लीनियर पेयर, तो अपन यहां पे लिखते हैं एंगल ओ एक्स ए और ओ एक्स बी की जगह पे ओ एक्स ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल ओ एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्रीज। एंगल ओ एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्रीज। एंगल ओ एक्स ए 90, एंगल ओ एक्स बी 90। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता है। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या ये समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और अपन ये भी बोल सकते हैं कि ओ डैश एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ डैश एक्स भी भाई साहब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। मुद्दा ये है कि हमने परपेंडिकुलर क्यों किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर होगा तो बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। इस थ्योरम को अपने को यूज करना है। ओके तो इतना लंबा चौड़ा प्रूफ आपका सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमको इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड है। तो आप भाई साहब कोई भी ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब ये कितने का है ए बी, टू सर्कल्स ऑफ रेडिया इंटरसेक्टेड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4। तो ये डिस्टेंस अगर 4 है तो लेट्स से हमने ओ एक्स को मान लिया, लेट्स से भाई साहब ये वाला डिस्टेंस आपका है, ये वाला डिस्टेंस अगर आपका x हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके ये वाला डिस्टेंस आपका कितने का है 5 का है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस अपने को नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ ए एक्स, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 25 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर नहीं मालूम तो ए एक्स ही लिखते हैं, प्लस ओ एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर अपन ने मान लिया एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अपन अगर मान लेते हैं लेट ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आपका भाई साहब ओ डैश एक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो आपका ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका थर्ड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। इसी तरह से इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, इन ट्राइंगल ए ओ डैश एक्स, यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ओ डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ए ओ का स्क्वायर कितना है भाई साहब आपका, ये 4 सेंटीमीटर का है, नहीं 3 सेंटीमीटर का, नहीं दिस ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो ए ओ का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ओ डैश एक्स का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ए एक्स का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 4। दोनों भी साइड में आपका क्या है ए एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी कैन से दैट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। चलिए यहां पे हो जाएगा आपका कितना, देखिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो 9 माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा 4 की वैल्यू हो गई 16 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होगा ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई साहब एक्सपैंड करते हुए हम कहां पे आते हैं, दिस विल बी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x, और ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इधर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका इस तरफ लाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 25, 9 माइनस 16 कितना हो गया भाई साहब आपका 7, है ना, कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो गया आपका -7 प्लस 2x, है ना, -7 प्लस 2x और इधर आपका 25, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2x की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 7 दैट इज 32, तो 2x की वैल्यू हो गई 32, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32/2 दैट इज हाउ मच 16, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है आपको, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई, ये आपकी हो गई 4 - x, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे ax की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ax स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी, अरे यार नहीं 5 ही होगा ना, ax का स्क्वायर विल बी 25 माइनस 16 कैसे आ गया यार, तब गड़बड़ हो गया है भाई साहब। ax स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर, 9 माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर, 16 माइनस 4 2 8, सॉरी यहाँ पे गलती हो, देखो 4 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ये 8x होगा, दिस विल बी 8x, ओके ओके ओके, सो दिस विल बी बेसिकली 9 माइनस 16 प्लस 8x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 16 हो गया आपका -7 और इधर होगा आपका 8x, ठीक है, तो इधर हो गया कितना भाई साहब 32, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 25 प्लस 7 हो गया आपका 32 इज इक्वल टू 8x, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/8 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 कैसे होगा भाई साहब, 4 2 8, सोल्यूशन आपका रॉन्ग आ रहा है यार, यहाँ पे 4 कैसे हो जाएगा, रॉन्ग सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो हाँ ये रॉन्ग सोल्यूशन ही हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अगर होता है तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड कितना हो जाएगा, ax का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस x का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9, ax का स्क्वायर हो गया 9, तो ax की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड का लेंथ AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax, ट्वाइस ऑफ ax क्यों भाई साहब, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, AB will be equal to twice of AX, that is 2 into 3, that is equal to 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।